Yes, sir. Okay, students, the question is, we'll be moving further, right? But before that, students, sort a few questions, students. Students, an observer can see through a pinhole at the top end of a thin rod of a height h placed as shown in the figure. The students think in that manner, okay, this is what a beaker is. And the height of the beaker is, students, 3 times h. Okay. An observer can see through a pinhole at the top end of a thin rod. So there is a pinhole. An observer can see through a pinhole at the top end of a thin rod of height h placed as shown in the figure. An observer can see through a pinhole at top end of a thin rod of a height h placed as shown in the figure. The beaker height is 3h. The height of the beaker, students, is 3h. The beaker height is 3h and the radius is h. This is the radius of the beaker. We'll consider that to be as h. Okay, students. When the beaker is filled with liquid up to a height of 2h, up to a height of 2h. This is liquid inside, students. It's filled up to a height of 2h, students. He can see the lower end of the rock. Students, he can see the lower end. जैसे मैंने beaker को पानी से भर दिया, he was able to see the lower end of the rock. यानी पहले केस में he was able to see through this particular pinhole. ध्यान से सुनना students. जब भी वो empty था, तो he could see the top of that particular rod. लेकिन जैसे उसको पानी से भर दिया मैंने, now who could see the bottom of that particular also, he could see it. पूछा गया है find out the refractive index of the liquid. Students, क्या ये question clear हुआ? Students, क्या ये question clear हुआ सबको? Do reply, students. Sir, can you repeat? Students, is the audio and video fine with all of you all? Can you hear me? Yes. Yes, sir. Real, what about you, Harsh? Sir, can you repeat question? Deep, Jash Desai. Sir. Jash Desai, कभी पहुंचा तू घर पे? Can you hear me? Sir, क्या? Students, can you all hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. Yeah, can you hear me? Yes, sir. Yes. No, my dear, I can't hear you. Harsh, मैं किसी को नहीं सुन सकता हूँ मैं. I can't hear anyone. Okay, I'm not able to hear you. That means some problem is there from my end.
Students, can you hear me? Yes. Okay, thanks. Now I could hear you now. Now I Sir, could hear can you you. repeat the question again? Acha, fine. Very sorry, students. First of all, very sorry for the delay part of it because I was at Guruvili. I was at the branch. I left from the branch by 5 minutes to 3. That's it. Okay, students, now listen carefully. Students, question ये है, okay, that कोई observer है. Listen carefully, students. The observer is watching into a beaker, students, through a small pinhole. ये छोटा सा pinhole है. And the observer is watching into the beaker, a small pinhole. Okay, and he sees the top of the thin rod. He sees the top of the thin rod of height h, as shown in the figure. Okay, now the beaker is of height 3h. The beaker is of height 3h, and the radius of the beaker is h. If this is h, base will be 2h. Okay, now when the beaker is filled, to a height of 2h, the observer can see the lower end of the rod also. Friends, he could see the lower end of the rod. पूछा गया है find out the refractive index of the liquid. Friends, अगर तुम्हें question समझ में आएगा, then you will be able to crack the questions. अगर वापस समझ में नहीं आया तो again I'm telling you students, वापस question बोल रहा हूँ students, लेकिन please try it out. You can get it very easily. I repeat students, पहला beaker पूरा empty था, radius of the beaker h है, तो total diameter कितना हो जाएगा? 2h हो जाएगा. Total height of the beaker 3h है. पहला beaker पूरा empty है, उसके एक साइड पे एक रॉड रखा हुआ है जिसका हाइट h है. फिर एक पिनोल में से तुम अगर देखते हो तो यू कैन सी द टिप ऑफ द रॉड. तुम्हारा विजन वहीं रखो. फिर तुम उसके अंदर तुमने लिक्विड डाल दिया. लिक्विड का हाइट तुमने 2h पे ले लिया. इट्स अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑलमोस्ट, एंड यू टेक इट टू हाइट ऑफ 2h. जैसे तुम लिक्विड भरते गए and when it reaches to height 2h, the same observer could see the bottom of this particular rod also. The same observer could see the bottom. This is the top and the bottom of the rod. पूछा गया है find out the refractive index of the liquid. Now the question is clear to all of you all. Yes. Did anybody get the answer, students? Yes, come on fast. Riya, Rishi, Niharika, Jai, Hitanshu, Deep. Your Norman is absent or what? No, sir, I am there. Okay, you're there. I'm there, sir. Okay. मुझे refractive index of liquid चाहिए. Solve करो students, बता दो. या हिंदू. Sir, hint. देखना पहले केस में तुम्हें ध्यान से सुनना. पहले केस में तुम्हें टिप दिखाई दे रहा था, नहीं सीधा जाना था स्टूडेंट्स. सेकंड केस में जैसे अंदर मैंने लिक्विड डाल दिया तो अभी बेंडिंग हो रहा है ना. तुम्हें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर तुम लोगे तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, एवरीवन?
Is this much clear, students? Yes, sir. अभी हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना. What are we going to do it, students? We are trying to find out the angle formed by it, students. अगर suppose if I happen to give you this is perpendicular, students, ये 2h है. If in case if I give you this as h, students ये देखो ये क्या हो जाएगा h, ये भी h होगा. What kind of a triangle? Please everybody, I'm just giving you a hint. What kind of a triangle is O A D will be? Isosceles right angle triangle, students. So can I take this as 45 degrees? हाँ students, क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Okay. अगर तुमने bottom of the rod ले लिया, so now my triangle will be O E B. This is also 90. Agreed. Yes, sir. अभी तुम यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है कि रिफ्रैक्शन कभी हो रहा है. ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन कभी हो रहा है when water is poured into it, the ray of light which was moving straight, now it's going from B2 and then from it into the eye, so it's denser to rarer, bending away from the normal. तो ये बन जाएगा तुम्हारा angle of refraction और ये हो जाएगा angle of incidence. रे कहां से ट्रैवल हो रहा है? लिक्विड टू है. तो मैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे मैं लिक्विड लिखूंगा और यहाँ पे एयर लिखूंगा. मुझे पूछा गया है लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो जो आंसर इसका होगा इसका रेसिप्रोकल होगा ना स्टूडेंट्स. ये इसका जो आंसर आएगा, सपोज इसका आंसर मुझे 2/3 मिला तो ये आंसर 3/2 होगा. मुझे ये आंसर निकालना है. अभी देखो मैंने तुम्हें दे दिया रे ट्रैवलिंग फ्रॉम लिक्विड टू एयर, तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुम्हें चाहिए. कैसे निकालोगे? वो तुम्हारा भी वे ऑफ अप्रोच. फिजिक्स का पार्ट मैंने बता दिया. नाउ वॉट एवर इज लेफ्ट इज एंटायरली मैथ्स. दैट्स द हिंट. नाउ गो अहेड विद इट. Priya, try to get it, okay? Yes, sir. No, my dear, the it's incorrect. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दे दो, यू बी एबल टू क्रैक इट. और ये मेंस का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. रिया आ रहा है कुछ? हाँ रिया, और shall I solve? Sir, solving. Okay. You want me to solve it, students? Sir, 1 minute. Okay, good. This is Harsh. हर्ष का आज डीपी चेंज हो गया, कुछ है ही नहीं डीपी में. सर मैं लैपटॉप से देख. अच्छा, today we'll be finishing with this topic, students. Let's complete हो जाएगी. Come on, Deep. Come on, Norman. What are you doing? Fast. Jai Desai, are you there, Jai?
Josh Deshan, sorry. Josh Desha, are you there? Yes, sir. When did you reach home? Sir, I reached at around 3:30, 3:25 or something. Okay, fine. Can you get the answer for this? बता सकते हो? No, Riya. Okay, students, can I solve it? Yes. Now, please pay attention, students. अभी ध्यान से सुनना. Refractive index of air with respect to liquid हम लेते हैं, तो can I say that will be equal to sin R upon sin R? ये तो simple Yes. relation. Yes, Now, sir. अगर तुम ध्यान से देखोगे students, mind you students, ये सबको आना चाहिए था. Students, this should have been everyone should have got this particular one, students. I don't know why is it so that you all are struggling for it. अगर तुम ध्यान से देखोगे students, तो ये angle of incidence कौन से triangle के लिए है? तो तुम बोलो ना सर angle of incidence ये बड़े triangle के लिए. Have a look at the bigger triangle, students. ये है तुम्हारा angle of incidence. Agreed? This is O, this is point E, and this is point B, students. What is this? This is the radius H. What is the height of the liquid column was 2H? Students, can I find out the hypotenuse? Yes, root 5H. क्या ये clear हुआ, students? Yes, कितना sir. clear? Yes. Now, can you find the sign of angle of incidence, students? What is sign of angle of incidence in this case? The sign of angle of incidence will be opposite upon hypotenuse, so H by root 5H. ये यहाँ पे डालना है, बस खत्म हो गई बात. अभी sin R निकालो. sin R के लिए क्या करोगे? सर sin R तो ये वाला एंगल है, तो am I getting a vertically opposite angle? Why not? ये देखो ना, ये और ये एंगल वर्टिकल हो गया. These two angles are vertically opposite angles. So now what kind of a triangle I'll consider in this case? Oh sir, इसके लिए तो हमारा छोटा triangle हो जाएगा. So देखो ना, ये भी angle R हो गया. This is T, this is O, this is A, this is H, this is also H, and this is 45. We have got it. So can I say this is root 2H? Students, this is the an isosceles, and if in case if I happen to go for angle R, my angle R will be what? 45 degrees. Students, angle R 45 degrees होगा कि नहीं होगा? बताओ. Yes, sir. So now if in case अगर मैं 45 नहीं लिखता हूँ, फिर भी if in case if I say what is sin R? What is sin R? So sin R will be equal to opposite upon hypotenuse. Can I substitute these two values and get the answer? Yes. What is sin I? Sin I is equal to what? So H upon root 5H divided by sin R, and root 2H upon H. So this will get cancelled. What's my answer? Root 2 by 5. ये है refractive index of air with respect to liquid. तुम्हें पूछा गया था refractive index of liquid पूछा था students. Refractive index of liquid with respect to air पूछा था, तो होगा क्या? Reciprocal. Principle of reversibility of path of light, students. Principle of reversibility of path of light. Air with respect to liquid. And air with respect to liquid is this. So इसका reciprocal क्या होगा? Root 5 upon 2. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरी बात students, since refraction phenomena हो रहा है यहाँ पे, students listen carefully. यहाँ पे phenomena of refraction is certainly taking place. अगर refraction हो रहा है, तो what about the refractive index of any optical medium, students? Refractive index of any transparent medium, students, is always greater than 1. हमेशा greater than 1 होगा. तो जब भी तुम solve करोगे, तुम्हें 1 से ज्यादा आना चाहिए. अगर मैं root 5 upon 2 लेता हूँ, तो root of 2.5, root of 2.5 यानी 250 यानी what exactly we consider in terms of it? I can consider is 21 square 441, 22 square 442. You can consider my answer will be greater than that. Root of 2.5 का आंसर ज्यादा ही होगा. Are you getting it? 15 के आसपास आएगा. 15 square is 225. 1.5 के आसपास. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Yes, sir.
Okay, can I erase this? Yes, sir. Okay, students. The next question, students. A ray of light is traveling from an optically denser medium to an optically rarer medium, students. This is denser and this is optically rarer. The ray of light is traveling from optically denser to optically rarer medium. So will it bend towards or it bends away? It bends away from the normal, students. Okay, denser medium strikes a rarer medium at an angle of incidence I. If the reflected and the refracted rays are mutually perpendicular to each other. यानी if in case if I happen to consider ये तुम्हारा refracted light है और ये तुम्हारा reflected light है और अगर मैंने बोल दिया कि ये दोनों mutually perpendicular है, अगर this is a refracted ray and this is a reflected ray, okay, that means this is also your angle of reflection is equal to angle of incidence और ये तुम्हारा angle of refraction हो जाएगा, students. Okay, and both of them mutually perpendicular to each other, students. मेरा question तुम्हें ये है, what is the value of critical angle? Is the question clear to all of you? Yes. क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने पहला किया है दूसरा टाइप का? Yes. Okay. वो अलग क्वेश्चन था स्टूडेंट्स. वहां पे मैंने पूछा था व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी. तो तुम्हें क्या मिला था, कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? फॉर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर, वो कहां पे था, रेयर टू डेंसर. रेयर टू डेंसर तुम्हें मिला था और मैंने बोला था ये रिफ्रैक्टेड एंड इंसिडेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो व्हाट एग्जैक्टली वी गॉट इट, म्यू इज इक्वल टू 10 i. कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ, sir. Refractive index of the medium was equal to tan of angle of incidence. स्टूडेंट्स याद है कि नहीं है? Yes, sir. ओके, प्लीज याद रखना. ये सारे क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ऑफ सिनॉप्सिस बन जाते थे. यानी ये चीजें फिर एक थ्योरेटिकली वे अप्रोच तुम्हें याद, डेरिवेशन तुम्हें अभी पता चल गया है. तो ये लेकिन हमेशा तुम्हें ध्यान में रखना है कि ऐसा भी है पॉसिबिलिटी. अभी यहाँ पे मैंने पूछा डेंसर टू एरर, मैंने पूछा है गिव मी द रिलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल. Yes, anybody? Around me. Yes, can I solve it for you all students? Sir, 1 minute. 1 minute. Good. Oh, very sorry, Soham. I thought so you are not there. Okay, Soham.
Fine. Good. Josh and Shiresh, can you hear me? Josh and Shiresh, Josh Joshi. Norman has put forward the answer. Norman, नहीं यार, ये क्यों ऐसा किया तूने? Soham, can you answer, Soham? Norman, why did you do like this? Norman, chalo, what exactly the answer we had got it for the previous? Forget about it, students. Students, forget about this. Norman, अगर तुम्हें पता होगा तो हम लोग ने last lecture में क्या किया था? If a ray of light is incident over here, students, and with traveling from rarer to denser, तो कहने से ये angle of incidence था, ये angle of refraction था, bending towards normal. और फिर मैंने Yes. पूछा था, if your reflected light or refracted light mutually perpendicular था, Sir, तो it will तुम्हारा be tan I ना. हाँ एक हाँ तो वही ना, तो तुम्हारा क्या था? Refractive index is equal to tan of IP, है ना? ये मिला था कि नहीं मिला था? हाँ सर। Yes. लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका था? डेंजर टू रेयर था ना? कि क्या ये क्लियर हुआ? हाँ Yes. सर। यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रहा है स्टूडेंट्स? डेंजर टू रेयर जा रहा है। दूसरी बात, एक ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें पता है मैंने सारे फॉर्मूलाज एक साथ में लिखे थे, सारे एक रो में लिखे थे। तुम्हें एक फॉर्मूला और भी मैंने बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंजर टू रेयर, कैन आई से व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। हाँ सर। Yes, sir. इसका डेरिवेशन किया था हम लोगों ने। तो when I say the refractive index of denser to rarer is 10 IP and refractive index of denser to rarer is 1 upon sin IC, therefore can I say 10 IP is equal to 1 upon sin IC? क्या ये Yes. क्लियर हुआ? Yes. therefore मुझे क्या पूछा? अभी देखो यहाँ पे डेंजर टू रेयर जा रहा है, मुझे सिर्फ क्रिटिकल एंगल का रिलेशन पूछा है, तो यही फॉर्मूला आएगा ना मेरा। What exactly is sin IC? So sin IC will be 1 upon tan I. So what exactly IC will be equal to? Sine inverse of, what is reciprocal of tan I? Cot I. Sir, I have sent you. Norman, पता चला? हाँ sir. तूने tan में ही लिखा था। स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? ये और ये क्वेश्चन दोनों अलग नहीं थे स्टूडेंट्स। वापस अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, वापस ध्यान में सुनना। मैंने सारे फॉर्मूलाज एक लाइन में लिखे थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, उसमें तुम सारे एक साथ में चेंज कर रहे थे स्टूडेंट्स। Refractive index of medium 2 with respect to medium 1, velocity of light in the first medium to the velocity of light in second medium, wavelength in first medium to wavelength in second medium, distance covered in first medium to distance covered in second medium, keeping time constant, यहाँ पे frequency constant, which is equal to sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction, which is equal to 1 upon refractive index of 1 with respect to 2, principle of reversibility of path of light, which is equal to refractive index of medium 2 upon refractive index of medium 1, which is equal to real depth upon apparent depth, which is equal to 1 upon tan of angle, sorry, 1 upon sine of IC, critical angle, which is equal to tan of I. ये सारे इक्वेशंस, तो मैंने कौन सा इक्वेशन लिया मालूम है? ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने ये वाला लिया, ये वाला लिया और ये, इन तीनों को मैंने इक्वेट कर दिया। इन दोनों का इक्वेशन को इक्वेट करके मुझे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से मिलता है। हमें पूछा गया है क्वेश्चन में इन दोनों के बारे में। भले रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंजर टू रेयर, स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल के हिसाब से अगर लूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आई कैन गेट माय आंसर अकॉर्डिंगली।
साइन आई सी क्या होगा? 1/10 है, 1/10 है स्कॉट है। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? हाँ Yes. सर मैंने आंसर भेजा, क्या बोल रहे हो? मैंने आंसर भेजा था। तूने आंसर भेजा? हर्ष मैंने देखा ही नहीं तेरा आंसर। वेरी सॉरी। ओके वेरी गुड। Students, can I erase it? Yes, sir. Now this next question will be solved by Soham. Soham, अगर तू आंसर नहीं देगा तो I am going to remove you from the lecture, हाँ? Erase करो students, इसको erase कर दो। हाँ Yes, sir. सर। Okay, now students, listen carefully. Okay. A ray of light is incident at a point at an angle of incidence of 60 degrees. So a ray of light is incident at a point. Let us take this as point P, O. Okay. This is your first normal at an angle of 60 degrees. Okay. Enters a glass sphere, and the refractive index of glass is √3. And is reflected and refracted at the farthest surface. The ray gets reflected and refracted at farthest surface, यानी ये वाला surface इस तरफ, यानी at point Q. अभी डायग्राम तुम बनाना, मैं नहीं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ का. Okay, it gets reflected and refracted at the farthest surface of the sphere. पूछा गया स्टूडेंट्स, what is the angle between the refracted and the reflected ray? What is the angle between refracted and reflected rays? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? हाँ सर। Yes, sir. वापस बोला स्टूडेंट्स, एक ग्लास स्फीयर है, एक ग्लास स्फीयर दिया हुआ है. A ray of light is incident at point P. A normal is drawn at an angle of 60 degrees. This ray of light then enters into the glass chamber. Is that clear? Now you have to find out, and the refractive index of glass is given to you as √3 students. The ray gets reflected and refracted at the farthest surface. अब ये तो मैंने डायग्राम थोड़ा सा बता दिया, मुझे नहीं बताना चाहिए था. Okay, at the farthest surface we consider the angle between the refracted and the reflected ray is. That's a question asked. Try to get the answer, please. So come on, answer for us. I'm waiting for you.
Yes, anybody? Yes, students, can I solve it for you all? Very good, Norman. 1 minute, sir. क्या बात है, रिया को आंसर मिल रहा है एकदम एकदम वेरी स्ट्रांगली स्पीकिंग. 1 minute, sir. कहाँ भाग रहे हो? Norman has got the answer, students. Good. Deep, what about you? Harsh? See, I could now see just these 4 students are responding. Just sitting like that. Oh, Riya also got the answer. Very good. 2 students have got the answer correct. Rishi, what about you? Malav, क्या कर रहे हो तुम लोग? मालव है ही नहीं. Ruksar, are you there, Ruksar? Yes, sir. ये कहाँ तुम थे इतने सालों तक? Where were you? Ruksar? Ruksar, I'm asking you something. Where were you? Okay, can anybody can answer? Riya, you answer. Riya, fast. Come on, tell me how to do it. Sir, it will be 90. Yeah, angle is absolutely correct. The angle answer is 90 degrees. Students. Riya, can you answer? Yes, can you sir. बोलो, कैसे करोगे? So at point P, we'll put that sine 60 by sine R1 will put an is equal to root 3. Okay, the ray of light will travel from rarer to denser, so it's going to bend towards normal. So don't it means you mean to say it will reach towards point Q? Yeah. Okay, so this is the angle of refraction. Yes. Is this also the same angle? Yes, sir. Why? What's the reason? So radius circle, it is circle on that side. कैसे कैसे पता चला ये दोनों रेडियस हैं? क्यों भाई? ये तो मैंने बता दिया तुम्हें. जरूरी है कि नॉर्मल शुड पास थ्रू द सेंटर. ये तुम्हारा नॉर्मल है ना? हाँ सर, सेंटर से पास. तो ये ध्यान से सुना. मैंने गलती कर दी. मुझे सिर्फ इतना सा डायग्राम देना था. सिर्फ मुझे इतना सा डायग्राम देना था बस. इसके बियॉन्ड कुछ नहीं देना था. ये थोड़ा सा डायग्राम देके मैंने इजी बना दिया. लेकिन स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, कभी भी कोई भी कर्व सरफेस लेते हो स्टूडेंट्स, एनी कर्व सरफेस व्हेन यू ट्राई टू गो फॉर इट, a normal drawn to any curved surface will certainly pass through its center of curvature. Will always pass through center of curvature. Yes, Rishi. Center of curvature से pass होगा. तो ये तुम्हारा center of curvature से pass हुआ students. तभी जाके ये तुम्हारा क्या हो गया? Radius हो गया. And this becomes your isosceles triangle. Now what exactly Riyash is saying? It's a refractive index of it starting from air to glass. So that will be equal to what? Sin I upon sin R. So sin R will be equal to what? Sin of 60, that is root 3 by 2. And refractive index of glass is root 3. So ये cancel हो जाएगा. तो sin R हो जाएगा 1 by 2. So what is R? Riya, what you got? R is how much? R1 is how much? You got it as? So R1 30 degree. तो ये 30 degrees हो जाएगा.
ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री हुआ. अभी यहाँ पे आने के बाद में Yes, क्या sir. होगा? Denser to rarer. Denser, will the ray will bend towards or bends away? Away from. Away. Bends away. तो ये refracted ray हुआ. Can I say some part of the light is getting reflected also? Now, students, some part of the light is getting reflected back. Is this clear? Yes. Yes, sir. तुम्हें पूछा गया है the angle between the refracted ray यानी ये part and the reflected ray. This angle तुम्हें पूछा गया. So now this is R1. Can I take this as R2? क्या बोलो? अभी कैसे करोगे? प्रिया? What, sir? Now how you're going to do? How are you going to find out this angle between reflected and refracted? Man. Sir, the बोलो रिया. I want this angle, the question mark. When you're going to get that angle, when you know R2 and when you know this angle, which is already R1 की reflection है, ये तो 30 डिग्री से ही. मुझे R2 चाहिए. तो क्या R2 मिल सकेगा? क्यों नहीं? Is the ray passing Sir, it would be symmetrically? 60. It would be 60. Yeah. Angle of incidence is equal to angle of emergence. और अगर तुम प्रूव भी करोगे तो प्रूव कर सकते हो. No. Is the ray traveling from glass to air? Yes, glass to air. What is sine of angle of incidence? Sine R1. What is sine of angle of refraction? Is sine R2. मुझे sin R2 चाहिए. Sin R1 कितना है? सर sin R1 तो 30 डिग्री होगा. Sin of 30 degrees upon refractive index of air with respect to glass. Refractive index of glass with 1 respect by to air. हाँ, तो ये क्या होगा? 1 by root 3. So can I say this becomes root 3 by 2? What exactly? R2 will be 60 degrees. यानी तुम्हें ये 60 ही मिलेगा students. Agreed? यानी now when you see over here students for an entire straight line, अगर तुम ये पूरे straight line को देखोगे students, तो ये पूरा 180 है. 180 में से ये 60 निकाल दिया, ये 30 निकाल दिया, यानी 90. तो what is this angle? What is this angle? 90 degree. So the answer is 90. Yeah. Is this clear? yes, sir. Can I erase this, students? Yes, sir. Okay. So just try to complete these diagrams, okay? These are two prisms, ABC is given to you, and this is PQR. Same refractive index, students, okay? A ray of light is striking perpendicularly, okay, on the face QR. I want you to complete the diagram for this. Second diagram, students. If I'm giving you again an isosceles right angle triangle, students, okay, a ray of light is heading perpendicular to the face ABC. Complete the diagram, students. Okay, the third diagram. If I give you an equilateral triangle, students, this is the prism which is equilateral, 60
All are glass prisms, students, all are glass prisms. Okay. Now suppose if I happen to make a ray of light striking normally to this, complete the diagram. 4, 30, 90, 60 triangle, PQR. Agreed? सारों में students में diagram को complete करना. Students, please pay attention to this. You have to find out. Suppose अगर मेरा area of light is incident perpendicular to the upper part of 60 degrees. Students, complete the diagram. And the last diagram, students. On the last, second last. Okay. This is 90 students. This is 30, and this is 60. This is PQR. Now the same incident ray, I'm making it to strike perpendicularly on the side of 30 degrees. Complete the diagram. Again, it's a glass surface, students. Okay. A ray of light is striking at an angle of 42 degrees, students. Sorry, 48 degrees. Okay, glancing angle. Is 42 degrees. Complete the diagram. Students, क्या ये सारे diagrams clear हुए? Now, students, I wanted to complete the path of light in all the cases. These are all prisms given to you made up of glass. Okay, and the refractive index is same for all we consider in that case. Okay, you have to simply complete the diagram. Wherever I have shown dots are equal, that means it's an isosceles triangle. Somewhere I've gone for right angle, this equilateral triangle. Somewhere I've gone for 30, 60, 90 triangles. Refractive index. It's the same for all. 1.5. Okay. सर वो अपने डॉट क्यों? डॉट का मतलब 45 डिग्री है. अच्छा. It's an isosceles right angle. दोनों angles equal है. इसमें सारे diagram you can solve it in less than 5 minutes, students. किसी ने complete किया है?
ओके स्टूडेंट्स, कैन आई एक्सप्लेन योर स्टूडेंट्स? सॉल्व करूं मैं? करो। ज्यादा टाइम मत लो स्टूडेंट्स, ये 5 मिनट के अंदर होता है स्टूडेंट्स। मुझे बताओ, मुझे कोई बता सकता है ये आंसर्स लाने के लिए तुम किसकी क्या क्या, क्या कंसेप्ट यूज करो यहाँ पे, मुझे बताओ। रिफ्लेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू साइन ऑफ। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। डोंट ट्राई टू फाइंड आउट एंगल्स एट ऑल। यहाँ पे कहाँ पे भी तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। Yes, sir. तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ एक ही, हाँ बोलो, हु सेड इट? यस, नॉर्मन, यू सर, यू सेइंग इट? Yes, sir. हाँ नॉर्मन, बोलो क्या करोगे तुम यहाँ पे Sir, सिर्फ? only we have to see where it will refract or reflect. वेरी गुड, यानी तुम क्या करोगे? TIR का कंसेप्ट लोगे बस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आएगा स्टूडेंट्स। ये जितने भी डायग्राम्स हैं सिर्फ TIR के ऊपर डिपेंड है। और ये कौन सा मटेरियल मैंने बोला, जान बुझ के ग्लास बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका सेम है। तो व्हाट एग्जैक्टली द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास तुम्हें याद में रखना है स्टूडेंट। क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास का मतलब क्या हुआ? 42 डिग्रीज। ये दो चीजें तुम्हें ध्यान रखना है कि सिर्फ तुम्हें रिफ्लेक्शन के बारे में ध्यान रखना है, क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। कहाँ कहाँ पे तुम्हें एंगल फाइंड आउट करना है, बस दैट्स ऑल। लेकिन वो इजीली अवेलेबल है क्योंकि मैंने डायग्राम में एंगल्स भी कौन से दिए, सारे अलग अलग एंगल्स दिए हैं। एंड क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 42 डिग्री। और ये ध्यान में रखना, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर लेस देन है तो रिफ्रैक्ट करेगा, इक्वल टू है तो ग्रेजिंग जाएगा। ये तीन चीज मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में, उसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन किया। नाउ ट्राई टू सॉल्व प्लीज इन लेस टाइम, ऑल ऑफ यू ऑल। Riya, are you getting it, Riya? Riya, Yes, sir. मिल रहा है तुम्हें कि नहीं? पहला वाला मिला तुम्हें कि नहीं मिला? सर कर रही हूँ। तो आंसर दे दो अभी, चलो पहला वाले के लिए। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल इसलिए होंगे स्टूडेंट्स, अगर देखो मैंने ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैंने ये वी ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलर कर दिया तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, वो सीधा जाएगा, हिट होगा। जैसे यहाँ पे आएगा तुम क्या करो, इसको यहाँ पे एक नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस, ये नॉर्मल बना दिया, ये 45, ये 90, तो ये 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? 45 हुआ कि नहीं हुआ? ये होगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। स्टूडेंट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस को ध्यान से समझना। नाउ सी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 42? Yes. The angle of incidence is greater than 42. So if the angle of incidence is greater than 42, क्या होगा? Total internal reflection होगा, यानी exactly वो reflect करेगा। ये भी तुम्हारा 42 degrees होगा, है ना स्टूडेंट्स? Angle I is equal to angle R। अबे देखो ये 42, ये सॉरी ये 45 है, not 40, ये 45, 45, 45, तो ये भी 45। Now see over here students, is this ray coming out perpendicularly Yes. at face? तो perpendicular बाहर आता करने से it's going to hit the face AB also perpendicularly। अरे हाँ सर, वो सेम रे परपेंडिकुलर जाए तो अंदर की तरफ चला जाएगा। यस, सीधा ही जाएगा फ्रेंड्स, वो सीधा जाएगा। नाउ इट्स हिटिंग ओवर हियर, कैन आई ड्रॉ नॉर्मल ओवर हियर आल्सो? यस, हाँ सर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल आ जाएगा तुम्हारा। सर ये 45, तो ये भी 45, तो ये भी 45 हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? 45।
is your angle of incidence. Look over here. This is the angle of incidence. Is your angle of incidence greater than critical angle? Yes. Angle of incidence is greater than critical angle. तो क्या होगा? Total internal reflection हो जाएगा. तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? ये भी तुम्हारा 45 होगा. I is equal to R. ये भी 45 होगा तो ये 90 होगा. See the ray coming out straight. यानी स्टूडेंट्स रे जा रहा था अंदर परपेंडिकुलरली, बाहर भी आ रहा है परपेंडिकुलर. Students, this is actually is deviation through 180. A diagram for deviation through 180. Yes. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. और सारे केस में हमने क्या किया? इफ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, PIR होगा. Deep, clear to you? Deep, are you there? Yes, sir. कहाँ तक पहुंचा? कौन से डायग्राम तक पहुंचा तू? Harsh, what about you? Harsh, where are you? Sir, I am at third. अभी देखो सेकंड वाले के लिए मैं बोलूं, is the ray hitting perpendicularly? Yes. Okay, so now it's striking over here. Now it's moving in Sir, this way. but- And हाँ, क्या बोल रहे हो? Sir, ray perpendicularly angle of incidence 90 degree है ना पहला. Sir, तो एंगल, हाँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है. 90 किसने बोला? हर्ष. अगर परपेंडिकुलर होगा तो इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0. हाँ sir. क्या कर रहा है तू हर्ष? तो ये तुम्हारा इंसिडेंट एंगल हुआ, ये 90 हुआ, ये 45, तो ये भी 40, ये 45 होगा. अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट. देखो यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. अगर ये 45 तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये पूरा 90 है. तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्रीज. विल इट अंडरगो रिफ्लेक्शन? यस. दिस इज अ रिफ्लेक्टेड लाइट. स्टूडेंट्स, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 है. देखो डॉट बताया मैंने. तो ये 45 तो ये भी 45, ये 45 तो ये भी 45. अभी यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो ना. अभी रे यहाँ से कैसे जाएगा? सर ये 45 तो ये भी 45 होगा. नाउ लुक एट माय एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है. दिस इज माय नेक्स्ट नॉर्मल. एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है ऑन फेस AB, दूसरा नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया ऑन फेस BC. लुक एट योर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45. इज 45 ग्रेटर देन 42? यस. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. Angle of incidence will be equal to angle of reflection. ये 45, ये भी 45, ये ऑलरेडी 45 दिया हुआ है तो ये 90 होगा. अरे सर ये तो 90 डिग्री पे हिट हो रहा है, तो क्या वो सीधा बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर. ये वाली चीजें मैं पूछ रहा था स्टूडेंट्स. यानी सारे डायग्राम्स में तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ टीआर आता है. अभी देखो मैंने कौन सा दिया? इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया 60 60 60. एरिया ऑफ लाइट इज हिटन परपेंडिकुलरली. अभी देखो ये परपेंडिकुलर है तो सीधे सीधा स्ट्राइक करेगा. चलो इसको सीधा ले लेते हैं. ये 90 डिग्री. रिया, कैन यू हियर मी नाउ? रिया, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, ये इंसिडेंट परपेंडिकुलरली हो रहा है. आई गेटिंग इट? अभी देखो ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30. व्हाट इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60. सबसे पहले तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझना है. एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? प्लीज, इट्स द एंगल फॉर्म बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल. ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है. अभी तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, तो स्टूडेंट्स कैन आई से माय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो विल बी 60. तो अभी रे ऐसा जा रहा है, यहाँ पे हिट होके ऐसा जा रहा है. ये 60 तो ये 30 हो जाएगा. ये 30 हुआ, से ये 60 हुआ, तो कैन आई से दिस इज 90. स्टूडेंट्स यहाँ पे Yes. कैसे जाएंगे रे? इज इट गोइंग टू गो आउट स्ट्रेट? यस. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? थर्ड वन नाउ हैव यू Yes. अंडरस्टूड? हाँ सर. Yes, sir. प्लीज अभी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कंप्लीट करो फास्ट. कम ऑन नॉर्मन, हैव यू कंप्लीटेड ऑल? Sir, I am on 5th. ओके. एंड ही नॉर्मन मस्ट बी नोइंग इट, क्योंकि सारे दूसरे आईसीसी में किए. नॉर्मन, यू आर एन आईसीसी स्टूडेंट ना? Yes, sir.
Excuse me, sir. Yes, excused. Arshita, you are the one. Sir, actually, I had a doubt in third diagram. Can I switch on my video for a second? हाँ बोलो. सर एक बार वीडियो ऑन कर सकती हूँ, मेरे को डायग्राम दिखाना है एक बार, मेरे को डाउट हो रहा है. हाँ हाँ तो दिखाओ ना, किसने मना किया? बिंदास. सर 1 सेकंड. सर कैन यू सी माय डायग्राम? अरे क्या बात है. सर मेरे को डाउट हो रहा है, मेरा दूसरा आ रहा है. किसके लिए? नहीं वही सेम है. हेलो, दूसरा नहीं आ रहा है, तुम्हारा सेम है. तुमने क्या किया मालूम है? मैंने नीचे की तरफ रखा है तो मेरा ये बेस को हिट कर रहा है ना. तुमने ऊपर की तरफ रखा है थोड़ा सा तुम्हारा, तो तुमने एबी को हिट किया. लेकिन देखो ना, एक ही दफे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. यहाँ पे भी मुझे भी एक दफे मिल रहा है, तुम्हें भी एक दफे मिल रहा है, सेम आ रहा है. वहां पे भी तुम्हें भी परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, मेरा भी परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है. ओके सर. करेक्ट है हर्षिता, तुम गलत कभी हो ही नहीं सकते. ओके. यस सर, मेरे को डाउट था, मेरा थोड़ा साइड से आ रहा है और आपका लो मिडल से आ रहा है वो रे. तो देखना आपका डायग्राम, देखो आपने रे को कहाँ से लिया है, आपने ए की तरफ ज्यादा खींचा उसको, और मैंने सी की तरफ उसको थोड़ा सा ज्यादा रखा है. मैंने सी की तरफ रखा, मैंने टिल्ट किया है सी की तरफ. समझ में आ रहा है? यस सर. ओके वेरी गुड हर्षिता, क्या बात है. फर्स्ट टाइम इन द लेक्चर समबडी. हर्षिता, कभी आज तक किसी ने कभी कोई बुक बताई है टीचर्स को? हाँ, यस सर, पहले भी बताया. पहली दफे हुआ ये? नहीं सर, पहले भी केमिस्ट्री में पूछा है सर. वेरी गुड. ये ऐसा करना चाहिए तुम लोगों को. तुम लोगों को तो सारे वीडियोस ऑन रखना चाहिए. तुम लोग ऑन रखते नहीं हो. कभी कभार ब्लू हाउस के अंदर बैठ जाओ स्टूडेंट्स, रेड हाउस के अंदर बैठ जाओ, वहां पे स्टूडेंट्स हैं, दे पुट ऑन द वीडियोस. शिवम है, प्रियम है, सनिका है, सारे वीडियोस ऑन करके बैठते हैं. यस नॉर्मल. ओके, कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स. कैन वी डिस्कस नाउ? स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन. ओके, Yes. प्लीज लुक ओवर हियर. ये जो 60 डिग्रीज का था कैसे था स्टूडेंट्स? अभी तो आई एम टेकिंग इट ऑन द अपर साइड स्टूडेंट्स. ये यहाँ पे हिट होगा, परपेंडिकुलरली मैंने ले लिया. तो ये 90, ये Yes. 60, तो ये 30 हो जाएगा. एग्रीड. यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये मेरा 60 हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल स्टूडेंट्स. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 110% होगा, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा. ये स्ट्राइक हो रहा है स्टूडेंट्स. एग्रीड. ये 60, तो ये भी 60. ध्यान से देखना अभी. ये 30 डिग्री, ये 90, ये कितना होगा? 60. नाउ स्टूडेंट्स, when the ray hits over here, मुझे ये बताओ what is the angle of incidence. ये नॉर्मल हुआ, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस. So what is the angle of incidence? 30 degrees. Sir, it will reflect. Now my angle of incidence, students, is it greater than critical angle or less than critical angle? Less than. तो क्या होगा? Will it undergo TR or will it refract? Reflect. Denser to rarer. सिर्फ तुम्हें क्या करना है? Bending away from the norm. समझ में आ रहा है? अभी वो तुम एंगल निकाल सकते हो, मुझे एंगल की जरूरत नहीं है फॉर द टाइमिंग. स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से sin अपन sin लेके तुम एंगल निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हें ये पता है कि रिफ्रैक्ट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्म. अभी देखो, मैंने ये ऊपर की तरफ लिया, अभी मैं नीचे की तरफ ले रहा हूँ. यही रे हिट हो रहा है परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, वो स्ट्राइक करेगा यहाँ पे. ड्रॉ परपेंडिकुलर. दिस इज 90, 30, दिस विल बी 60. कैन आई से दिस इज 30 नाउ? एग्रीड. Will it undergo TIR? Will it undergo total interior reflection, No. students? No, So sir. will it bend towards or bends away from the normal? Away. Away from. Agreed. वैसे यहाँ पे मैंने लिया है स्टूडेंट्स, आई एम ड्राइंग अ नॉर्मल ओवर हियर. और देखो ये एंगल देखो,
the ray of light is glancing at an angle of 42. Students, which angle is 42 degrees given over here? Batao. Sir, with surface AB, that incident ray 42. With the Sir, surface, AC. AC. with the surface is 42. Glancing angle is always with the Yeah. surface. तो मुझे बताओ angle of incidence कितना होगा? Students, what is angle of incidence? 48. 40. Is this material Yes. made up of glass? Yes. Are you getting it? So will it undergo TIR? Will it undergo TIR? Yes. Okay. It will undergo total internal reflection. So it hits and it undergoes total internal reflection. Agreed? ये भी तुम्हारा Yes. 48 होगा. 48. Are you getting 42 it? there. Yes. ये तुम्हारा 42 होगा. Agreed? Now यहाँ पे तुम्हारा मैंने angle दिया नहीं है, तो you can't judge it over here. The ray of light is going to hit over here and then it undergoes diffraction. So I just wanted this part of it. अगर suppose मैंने glancing angle 48 दिया होता तो मेरा angle of incidence क्या होता? Students, अगर glancing angle मैंने 48 दिया होता तो angle of incidence क्या होता? 42. 42. So will the ray will undergo TIR or will it go grazing? Sir, 90 degree. Yes, वो ऐसे बाहर जाता है. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Yes. Yes. Yes, sir. इरेज कर दूं अभी मैं? 1 minute. या स्टूडेंट इरेज कर दो अभी. Sir, 1 minute. Sir. अगर सपोज ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. Done. तो क्या होता? नाउ कैन यू कंप्लीट द डायग्राम स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, तुम्हारा ये इंसिडेंट है ग्लांसिंग एंगल 42 ओनली. Sir, वो 48 होता ना फिर से. हाँ अभी देखो ध्यान से, मैंने अभी ये एंगल तुम्हें दे दिया 90. ये तुम्हारा ग्लांसिंग एंगल 42 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 48, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी रिफ्लेक्शन इज आल्सो 48. ये 42 हो जाएगा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? 48. 48. व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे? 42. 42. हाँ सर. So now will the ray of light will refract or will go grazing? Grazing. Grazing. यानी तुम्हारा रे ऐसे है. Agreed? हाँ सर. अब इरेज कर दो स्टूडेंट्स. Yes. Now students, the last part is your prism, students. Only over here you have your lens makers formulas. That's all to be taken care of. That's all. The rest is very easy. Students, now when you look into it, your formula for prism, students. What exactly a prism? A prism consists of students 2 triangle and 3 rectangular faces, students. प्रिज्म हमेशा क्या होता है? 2 ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, 2 ट्राइंगल होते हैं और 3 रेक्टेंगल होते हैं. ना फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बुक ले लूं स्टूडेंट्स, ओके, और ये बुक को अगर सपोज मैंने ऐसे रख दिया स्टूडेंट्स,
तो देखो तुम्हारे सामने क्या है, 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये आगे वाला और ये पीछे वाला। कितने रेक्टेंगल दिख रहे हैं? एक, नीचे वाला एक रेक्टेंगल और यहाँ का एक रेक्टेंगल। This means when you see over here how much it is 2 triangles and 3 rectangles we consider, so that's a prism we consider. When you speak about the prism, ये जो है हमेशा इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, ABC। ये है रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म, ये पीछे का पार्ट है प्रिज्म का, इट्स दिस। ये है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म। स्टूडेंट्स एंगल ए हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ABC is called principal section of the prism. ये है रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म। ये वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ? न्यूमेरिकल्स के लिए स्टूडेंट्स, दे गिव यू दीज थिंग्स, क्योंकि एट टाइम्स एंगल वो बताते हैं विद द रिफ्रैक्टिंग एज। या अगर कभी बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म is 60 डिग्रीज, उसका मतलब एंगल ही दिया है 60 डिग्रीज। ये सब चीजें तुम्हें ध्यान से मालूम होनी चाहिए। प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म इज शोन सच दैट द रिफ्रैक्टिंग एंगल is 60 डिग्रीज। तो प्रिंसिपल सेक्शन क्या होगा? ट्राइंगुलर पोर्शन, नॉट द रेक्टेंगुलर पोर्शन। ये ध्यान में रखना जरूरी है। Now when I speak about prism का refraction, तो very easy, most of you are aware about it. अगर suppose मेरे को prism लिया students, and if I happen to go for a monochromatic ray of light, friends, if I happen to go for monochromatic ray of light का मतलब क्या? Single colored, single wavelength. Okay? अगर मैं monochromatic ray of light लेके जा रहा हूँ, and if I make it to enter into the prism students, so ray of light is striking, PQ is an incident ray students. If I draw normal over here, this is my angle of incidence students. Rarer tensor will bend towards the normal. Draw another normal students. Okay, denser to rarer, what's going to happen? Will bend away from the normal. So PQ is my incident ray students, QR is my refracted ray, RS becomes my emergent ray. Because the ray of light is traveling from air to glass, glass to air. ये है refraction through a prism. अगर सपोज मैं प्रिज्म लेता ही नहीं, ये दो नॉर्मल है स्टूडेंट्स, ये पहला वाला नॉर्मल है और ये दूसरा वाला नॉर्मल है। अगर ये प्रिज्म लेता नहीं स्टूडेंट्स, तो ये रे कैसा जाता? सीधा जाता। Since the ray of light would have gone straight. That means refraction does not take place in a medium of uniform optical density. यानी अगर optical density same होता throughout, तो refraction नहीं होता है। ये change हुआ ना optical density, air से glass में गया, glass से air में आया, तो there is change in optical density. तो change in optical density की वजह से क्या हुआ? Path change हुआ. Initially it should have gone straight, but now it's going from P to Q, Q to R, R to S. किसके लिए? फॉर एन ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है तो उसके लिए पाथ होगा PQRS, जहां पे PQ इंसिडेंट रहे, QR रिफ्रैक्टेड रहे, RS इमर्जेंट रहे। लेकिन अगर सपोज किसी ने यहाँ पे एक मिरर डाल दिया स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस केस में किया था, एंड नाउ सपोज अगर तुमने अपना विजन चेंज कर दिया, एंड नाउ इन दिस केस व्हाट एग्जैक्टली वी कंसीडर, अगर तुमने विजन चेंज कर दिया स्टूडेंट्स, तो नाउ कैन आई से जो इमर्जेंट रे था वो बन जाएगा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे तो वही बन जाएगा, जो इंसिडेंट रे था वो बन जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, एंड एंगल चेंजेस अकॉर्डिंगली। व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। अगर मैं ये इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ लेके जाता हूँ स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या मिलेगा? सर आपको एंगल ऑफ डिविएशन मिलेगा। ये क्या है? अगर मैं इसको पीछे की तरफ लेके जाऊं, एंगल ऑफ इमर्जेंस को पीछे की तरफ लेके जाऊं स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, यहां से अगर देखूंगा तो ये रे को जाना था सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जा रहा है। अभी देखो ये पूरा बेंड होकर यहाँ तक गया है। यानी स्टूडेंट्स ये जो एंगल तुम देख रहे हो ना, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। यानी स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, प्रिज्म में कौन सा फिनोमेना मोर डोमिनेंट होता है? डेविएशन। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे डिस्पर्शन है, वहां पे तुम्हारा डिविएशन नहीं होता है। Over there we consider as refraction being a change in the shift of the path of light students we consider. यहाँ पे the ray of light getting deviated to a great extent. वहां पे तुम्हारा डिविएशन नहीं होता। कैसे पता चलेगा कि वहां स्टूडेंट ध्यान से सुना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मैंने क्या बोला? वहां पे डिविएशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कैसे प्रूव करोगे? तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, सपोज अगर मैंने ये इरेक्ट प्रिज्म लिया, ये एक इरेक्ट प्रिज्म लिया, और स्टूडेंट्स उसी के सामने मैंने एक इन्वर्ट प्रिज्म डाल दिया, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली सेम, A, B, C, और ये A कॉम्प्लीमेंट।
दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे मैंने रे ऑफ लाइट डाल दिया, सेम मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट मैंने डाल दिया। तो देखो ना यहाँ पे कौन सा, इसको भूल जाओ ना, ये पहला वाला प्रिज्म लो तो उसका डायग्राम क्या होगा सर, रेड रेंजर आप बोलेंगे बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जैसे वो यहाँ पे जाएगा व्हाट्स गोना हैपन, it's going to slightly move in this direction depending on to the refractive index, same refractive index. Now what happens, it's going to go in this way. ये मटेरियल सेम हो गया ना स्टूडेंट्स। यानी ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनता किससे है, ये है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब स्टूडेंट्स, अ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज assumed to be made up of two prism, एक इरेक्ट और दूसरा इन्वर्टेड। एक साइड से रे अंदर आता है, दूसरे साइड से रे बाहर आता है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे सर, यहाँ पे डिविएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट। परपेंडिकुलर शिफ्ट का फॉर्मूला क्या मिला था हमें, एनीबॉडी रिमेंबर्स, थिकनेस T into sin I minus R upon cos. वेरी गुड। ये तुम्हारा हुआ परपेंडिकुलर शिफ्ट। यानी परपेंडिकुलर शिफ्ट इज अ फिनोमेना शोन बाय पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब, नॉट बाय अ प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। So what is angle of deviation? The angle formed by the incident ray when produced forward, emerged ray when produced backward is called as angle of deviation. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट? Yes. Now when I look into it, यहाँ पे तुम्हारा एक रिलेशन आएगा स्टूडेंट्स, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म। The relation is A plus delta is equal to I plus E. ये तुम्हारा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ, ये देखो A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, ये तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन है। सर एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब तीनों एंगल सेम रहेंगे, क्या बोल रहा हूँ, तीनों एंगल सेम रहेंगे। इक्विलैटरल प्रिज्म ना, ये इक्विलैटरल प्रिज्म लगा तो तीनों एंगल सेम होगा। हाँ सर, हम लोग इक्विलैटरल प्रिज्म के बारे में पकड़ते हैं। प्रिज्म इज एन इक्विलैटरल प्रिज्म, इक्वी एंगुलर प्रिज्म, इसको क्या नाम देते हैं, इक्वी एंगुलर प्रिज्म। ओके ओके सर, दैट्स एक्चुअली, कभी कभार तुम्हें 45 मींस इफ आई कैन गिव यू 45 एंगल आल्सो इन दैट केस, मुझे वहां का तुम्हें देखना है, दूसरा रेक्टेंगुलर सरफेस कैन बी चेंज्ड। तो ये है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल। स्टूडेंट ध्यान देखो, एंगल ऑफ प्रिज्म ए का मतलब प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। डी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये है तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 R2। लेट अस से दैट द टू नॉर्मल्स मीट एट पॉइंट T। स्टूडेंट्स एक इसका छोटा सा डेरिवेशन, प्लीज ध्यान से सुना, अभी ये कैसे निकालते हैं, एवरीबॉडी प्लीज लिसन केयरफुली। ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये R1 R2। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखो, ये अगर तुम राइट एंगल ट्रायंगल देखते हो ना स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स ये राइट एंगल ट्रायंगल तुम देख लो, सो नॉट लुक एट द ट्रायंगल स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा Q है, ये तुम्हारा R है और ये तुम्हारा T है। यहाँ पे तुम्हें R1 मिल रहा है, यहाँ पे तुम्हें R2 मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स कैन आई से फर्स्ट रिलेशन इज R1 प्लस R2 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? हाँ स्टूडेंट्स, Yes. दूसरी बात, if you see carefully students, if you see carefully, look at the normal over here, look at the normal over here. Normals always forms perpendicular. Okay, this is normal 1, this is normal 2, this is point A. Can you see the two normals are meeting at point D? मुझे बताओ what kind of a quadrilateral is AQPR? बताओ कौन सा quadrilateral है ये? साइक्लिक। साइक्लिक। तो कहने से एंगल A प्लस एंगल T भी 180 होगा। हाँ स्टूडेंट्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। हाँ तो इन दोनों को देखते हुए कहने से एंगल A प्लस एंगल T इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल T कैंसिल हो जाएगा, तो कहने से A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके एमसीक्यूज आते हैं स्टूडेंट्स। एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज इक्वल टू द समेशन ऑफ द टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके ये हिंट ये यूज करके हम ये आंसर लेके आ सकते हैं, इसके बगैर हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? हाँ सर, A is equal to R1 plus R2। ना अगर तुम ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, ये मेरा QR मैंने स्ट्रेट अवे ज्वाइन कर दिया था स्टूडेंट्स। ये तुम्हारा क्या है R1, ये क्या है तुम्हारा R2। नाउ व्हेन यू केयरफुली ऑब्जर्व स्टूडेंट्स, ये तुम्हें एंगल I दिखाई दे रहा है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
ये तुम्हारा यहाँ पे जो बाहर आ रहा है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है तो ये भी पूरा एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, E माइनस R2। ये एंगल क्या होगा, I माइनस R1। क्या ये क्लियर हुआ? ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट हुआ ना, ये देखो ना, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हुए। ये E है तो इसके सामने वाला ये भी E होगा। इसमें से मैंने R2 निकाल दिया तो ये एंगल क्या होगा, E माइनस R2। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. हाँ स्टूडेंट्स। Yes. Yes, sir. Clear. Now can you get it students? Now get it, can you get the answer students? बताओ। I want A plus delta is equal to I plus E। डेल्टा कौन सा है, ये देखो ना, ये डेल्टा है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर एंगल। अगर देखो इट्स नॉट द एंगल ऑफ प्रिज्म स्टूडेंट्स, इट्स नॉट एंगल। ये वाला एंगल की बारे में बात कर रहा हूँ हम लोग ने, ये वाला एंगल निकाला स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल निकाला हम लोगों ने। ये एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स, ये एंगल मुझे मिल रहा है I माइनस R1 और ये एंगल मुझे क्या मिल रहा है, E minus R2. Since exterior angle is equal to sum of its remote interior angles, so can I say E is equal to I minus R1 plus plus E minus R2? Is this clear? Yes. Delta is my exterior angle and that is equal to I minus R1 plus ये वाला एंगल E minus R2। क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ sir. So can I say delta is equal to I plus E minus R1 plus R2, but what is R1 plus R2 is? A. So delta is equal to I plus E minus A. Therefore, can I say A is equal to A plus delta is equal to I plus E? Is this clear? Students, क्या ये समझ में आया सबको? वापस बता रहा है, बहुत इजी है। नीचे वाला ट्राइंगल ले लो स्टूडेंट, सम ऑफ एंगल्स ओवर ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। दूसरा स्टेप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AQTE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों को इक्वेट करके ये रिलेशन आएगा। फिर तुम क्या करो, ये वाला एंगल निकालो। यानी ये स्टूडेंट्स, ये जो रे है ना, ये वाला रे और ये वाला रे पीछे जा रहा है स्टूडेंट्स। आई ट्राई टू पुट फॉरवर्ड इन दिस मैनर। ये डॉटेड रे को आगे ले लो और इसको तुम एंगल ऑफ इमर्जेंस को पीछे ले लो स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इमर्जेंस को पीछे ले लो, तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। तो हमने ये फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, ये I माइनस R1 है और ये जो एंगल तुम्हें मिला है ना, ये E माइनस R2 and exterior angle is equal to sum of its remote interior angle. बस इक्वेट करके you get the answer. Got it students? Yes. अभी मेरा ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, when exactly this delta becomes minimum, when exactly the angle of deviation becomes minimum, तो बता सकते Sir, हैं? don't drop. ओह वेरी सॉरी, ये वाला यहाँ पे deviation वाला नहीं था। हाँ sir, वो चले. Yes, can I proceed? Harsh? Sir, 1 minute. Yeah.
Clear? Sir, done, sir. हाँ बोलो. Can I go through it? Yes, sir. Done. Okay. सर आप जो एक्सप्लेन करे तब लिख रहा नहीं था. Okay. So what you want to say at the end of lectures, tell everyone, sir, regarding what? Soham says, Soham is telling sir, tell everyone to put on the camera. Very good. Soham, tu tera mic to on kar. Soham. Okay, students, listen carefully. A plus delta is equal to I plus E. Now, suppose अगर मैंने पूछा students, कभी ये angle of deviation minimum होगा students. तो ये ध्यान में रखना students. हाँ बोलो. Sir, when angle of incidence is equal to angle of emergence. Absolutely correct. For minimum angle of deviation, students, condition क्या होना चाहिए? Ray of light. सर तो deviation ही नहीं होगा ना. Should pass नहीं होगा ना? Pass symmetrically. अगर तू geometrically करेगा ना, geometry अगर तू देखेगा ना, तो you can easily get the answer. You getting it? So for minimum deviation, students, ray of light should pass symmetrically. कैसे? Such that angle of incidence is equal to angle of emergence. यानी अगर तुम इसका ray diagram बनाओगे ना students, for angle of minimum deviation ABC, तो students ये तुम्हारा incident ray होगा. तुम्हारा refracted ray students will be almost parallel to the base of the prism. यानी students कभी MCQs देंगे वो, और उस टाइम पे वो MCQs क्या देंगे, you know, that the prism is cut in such a manner. ध्यान से सुनना, वो ऐसे बताएंगे कि prism is cut in such a manner that the refracted ray is parallel to the base of the prism. It's almost parallel to the base of the prism. ये तुम्हारा refracted हुआ, ये तुम्हारा normal हुआ, यहाँ से normal हुआ, ये होगा तुम्हारा angle of emergence. तो तुम्हारा angle I students will be always equal to angle E. यानी ये भी तुम्हें एक isosceles triangle ही मिलेगा. बेस एंगल R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा. यानी अगर मैंने बोल दिया स्टूडेंट्स, अगर ये R1 इक्वल टू R2 होगा, तो कहना है से एंगल A विल बी इक्वल टू 2R. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, अगर I इज इक्वल टू E है, रे जा रहा है पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, तो क्या ये दोनों एंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हुए? R1 विल बी इक्वल टू R2. और अगर R1 इज इक्वल टू R2 है, ये दोनों एंगल इक्वल हुए, तो कहने से A इज इक्वल टू 2R1, A इज इक्वल टू 2R2. तो मैंने इक्वल क्या लिख दिया? 2R लिख दिया. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, Yes. प्लीज ट्राई टू थिंक प्रॉपर्ली. ये है तुम्हारा फॉर व्हाट मिनिमम डेविएशन. अभी सपोज तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को आगे लिया और उस टाइम पे तुमने इमर्जेंट रे को पीछे लिया. यहाँ पे जो तुम्हें एंगल मिल रहा है ना स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं डेल्टा मिनिमम. So the angle of deviation, when does angle of deviation reaches to minimum value? When the ray of light passes symmetrically. उसका मतलब क्या? The refracted ray will be parallel to the base of the prism. तो अगर वो वैसा होता है तो geometrically I और E के बीच में relation क्या होगा? दोनों equal होगा. What about angle of prism is equal to twice the angle of refraction.
नाउ सपोज अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला डाल दूं, ध्यान से सुनना, a प्लस डेल्टा की जगह पे अगर मैं डेल्टा मिनिमम डाल दूं, तो स्टूडेंट्स कैन यू से I and E are equal, तो यहाँ पे I, तो can I run this as also I, तो can I put this as 2I? हाँ students, is this Yes. clear students? Can you put 2I? So now can I get the angle of incidence? What is the angle of incidence I'm getting it? Sir, angle of incidence will be equal to what? Angle of incidence will be equal to A plus delta minimum by 2. Huh, students? What is Yes, angle sir. of refraction? What is angle of refraction? Angle of refraction is A by 2. Huh, students? Yes, Now sir. suppose if I ask you for such a prism, what is refractive index of glass with respect to air? What is the refractive index of glass with respect to air? Sin I upon sin R. So now what is my formula? Now what is my formula? So now my formula will be sin of A, I will be equal to what? A plus delta minimum by 2 upon sin of A by 2. ये कौन सा formula है students? Sin of A plus delta minimum by 2 अपॉन साइन ऑफ A by 2. R को मैंने क्या लिखा है? A by 2 लिखा है. I को मैंने क्या लिखा है? A plus delta minimum by 2. ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? प्रिज्म फॉर्मूला. Which is this formula students? प्रिज्म फॉर्मूला. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. यानी स्टूडेंट्स जब भी तुम पढ़ते हो तो तुम्हें प्रिज्म के बारे में ये एक तो फॉर्मूला याद में रखना है, A plus delta is equal to I plus E, A is equal to R1 plus R2. ये तुम्हें ध्यान में रखना है. Agreed? दूसरी बात, when exactly angle of deviation can reach to minimum value, तो तुम्हें बोलना है रे सिमेट्रिकली जाना चाहिए. सिमेट्रिकली का मतलब रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म होना चाहिए. अगर वो पैरेलल हो गया तो I will be equal to E. हाँ सर, I will be equal to E. जैसे मैंने यहाँ पे I equal to E डाल दिया तो ये 2I होगा, लेकिन I will be equal to E होगा तो डेल्टा उस टाइम पे क्या होगा? डेल्टा नहीं बचेगा, डेल्टा मिनिमम हो जाएगा. इसलिए मैंने लिखा A plus डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I. तो क्या मेरे को वैल्यू मिल गया. दूसरी बात, अगर मैंने ये सिमेट्रिकली कर दिया तो दोनों बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. R1 विल बी इक्वल टू R2, तो मुझे 2R लिख दिया, तो मेरे को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मिल गया. नाउ इफ आई से फॉर सच अ प्रिज्म वेयर इट शोज मिनिमम डेविएशन, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर? sin I upon sin R. R की वैल्यू मालूम है, I की वैल्यू मालूम है. कैन आई गेट माय प्रिज्म फार्मूला? So prism formula speaks about minimum deviation का concept. Is this clear students? Yes, sir. Students, the next lecture is only one. Lensmaker's formula is there and power of lenses, students. Okay, that I'm going to put it in the next lecture. And if possible, if sir tells me to go ahead with wave optics, I'll go ahead with wave optics. But if it's अगर wave optics होगा ना students, तो वो next lecture में ही शुरू होगा wave optics. Sir, wave Okay. optics हमारा आधा मतलब 1-2-3 लेक्चर हुआ है किसका? wave optics का. अरे हो गया तुम्हारा वो wave वेव optics? मैकेनिक्स का हुआ है सर. Wave mechanics किसने शुरू किया है वो? Sir, हेमंत sir. हेमंत सर. हाँ, तो वो तो वेव मैकेनिक्स होगा. साउंड वेव्स किया है ना सर ने, साउंड वेव्स किया है ना. यस सर. हाँ. नोड्स, एंटी नोड्स, वैक्सिंग, वैनिंग का कंडीशन किया होगा. नोड्स, एंटी नोड्स, वैक्सिंग और वैनिंग का कंडीशन किया होगा. हाँ स्टूडेंट्स, वो वाला किया है ना तुम्हारा. हाँ, हाँ. फाइन. सो दैट इज साउंड वेव्स. सर मैकेनिकल वेव ऑप्टिक्स नहीं हुआ है. wave हाँ, तो optics अलग है. वेव ऑप्टिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे. ये हार्डली हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड विल बी गोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेव ऑप्टिक्स. ओके स्टूडेंट्स, यस. चलो बाय. Sir, 1 minute. या